Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. I welcome to you all in Shri Ram Public School online classes. So till now in financial management chapter we have completed up to the choice of capital structure, the factors affecting, right? Then earning per shares, meaning and importance of the financial management, financial planning, etc. Now today we are going to see the new topic that is fixed and working capital. Fixed and working capital meaning and definition you already studied in your account subject, right? As you know that fixed capital are those capital which we are used for a more than 1 year or we can say that for a longer period of time, and the working capital are those capital which we use in a daily requirement purpose, right, as an input output was produced. So let's start with the topic, meaning every company needs a fund to finance its assets and activities. Investment is required to be made in fixed assets and current assets, right? Because current assets we are using for making the production of the goods, and the fixed assets we make the investment in the fixed assets. So while using the such asset we are able to produce the goods with the working current assets, working capital. यानी कि जो फिक्स एसेट्स होता है उसी की बदौलत उन्हीं चीज़ों को हम यूज़ करके अपने गुड्स को आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज। इन्हीं की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने रॉ मटेरियल जो हमारा वर्किंग कैपिटल का पार्ट है उसको कन्वर्ट करते हैं किस में, फिनिश्ड गुड्स में। क्लियर? A fixed asset are those which remain in the business for more than 1 year, as I told you earlier, usually for much longer. For example, plant and machinery, furniture and fixture, land and building, vehicles, etc. are example of the fixed assets. Decision to invest in the fixed asset must be taken very carefully, as the decision once taken are irrevocable except at a huge loss. क्या कह रहे हैं देखिए ध्यान से, decision to invest in the fixed asset must be taken very carefully, as the investment is usually quite large. Such decision once taken are irrevocable except at a huge loss. यानी जब भी आप डिसीजन लेते हो ना कोई लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसे फिक्स एसेट्स वगैरह, तो बहुत ध्यान से उसका डिसीजन लीजिए, क्योंकि उसमें आप एक बार जो पैसा इन्वेस्ट कर दिए उसके थ्रू हमें जनरेशन ऑफ प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर आपका डिसीजन रॉन्ग हो गया तो जितना आपने इन्वेस्ट किया वो पूरा का पूरा आपका लॉस हो जाएगा। जैसे आपको पता है, मान लीजिए हम कोई नया मोबाइल ले रहे हैं, ठीक है, उसका वैल्यू 50,000 है मान लीजिए सपोज़। आपको पता है जैसे आप शॉप से बाहर निकल के आएंगे उसके बाद अगर आपको रियलाइज़ होता है कि अरे यार हम लोग ने तो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ये तो नहीं करना चाहिए था, चलो एक काम करते रिटर्न करके दूसरा ले लेंगे। तो जैसे आप शॉप में जाएंगे ना, आपकी मोबाइल की वैल्यू जो है वो 50 से कम हो जाएगी। क्लियर हुआ? ठीक है, तो यही चीज़ें कंपनी के एसेट्स के साथ में भी होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब भी आप फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत ही ध्यान से डिसीजन लेना चाहिए। ठीक, Such decisions are called the capital budgeting decision. A current asset are those assets which in the normal routine of the business get converted into cash or the cash equivalent within a 1 year. करंट एसेट्स क्या है, वो चीज़ है जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे कि सिंपल है, रॉ मटेरियल यूज़ करके आपने फिनिश्ड गुड्स बनाया और उसको बेच दिया, इमीडिएटली आपको कैश मिल गया। ठीक है, या तो कैश मिल गया, अगर कैश नहीं भी मिला है तो कैश की वैल्यू जितनी होगी उतने का आउटपुट आपके पास वैल्यूएबल है, यानी वो कैश इक्विवेलेंट है। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री, डेटर, बिल रिसीवेबल एक्सेट्रा, जिसके थ्रू आपको बहुत ही जल्द कैश मिल सकता है लेस देन 1 ईयर में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। अब हम देखेंगे कि फिक्स कैपिटल को मैनेज कैसे करना चाहिए। Fixed capital refers to investment in long-term assets, simple, more than 1 year. A management of fixed capital involve allocation of the firm's capital to different project or asset with long-term implication for the business. This decision are called investment decision or capital budgeting decision.
फिक्स एसेट्स में, फिक्स कैपिटल में जो हम पैसे डालते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल बजटिंग या तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म नेचर का होता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, and affect the growth, profitability and the risk of the business in the long run. This long term asset last for more than 1 year. जैसे कि हमने आगे देखा जो करंट एसेट है, वर्किंग कैपिटल है, उसमें क्या होता है, लेस देन 1 ईयर में ही हमें वर्किंग कैपिटल के थ्रू कैश मिलता है या तो कैश के इक्विवेलेंट का कुछ आइटम्स मिलता है जैसे इन्वेंट्री, बिल रिसीवेबल एक्सेट्रा। बट जो पैसा आप फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, यानी उससे भी प्रॉफिट होगा आपको, लेकिन वो प्रॉफिट आपको विद इन 1 ईयर दिखाई नहीं देगा, बल्कि ओवर अ ईयर तक आपको दिखाई देता रहेगा। It must be financed through the long-term source of capital such as equity, preference share, debenture, long-term loans and retained earning. सिंपल है, जब कोई पैसा आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियसली उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने जिस भी सोर्स से फाइनेंस मंगाया है वो भी आप लॉन्ग टर्म ही चूज़ करोगे। रीज़न उसका ये है, मान लीजिए अगर आपने शॉर्ट टर्म लोन लिया लेस देन 1 ईयर और उससे आपने मशीनरीज खरीदी, तो मशीनरी आपके लोन का जो वैल्यू है वो आपको विद इन 1 ईयर इनकम जनरेट करके नहीं देगी, प्रॉफिट जनरेट करके नहीं देगी, बल्कि वो कई सालों तक थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट जनरेट करेगी, जो धीरे 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 हाई होगा, लेकिन इमीडिएटली 1 ही साल के अंदर अंदर नहीं देगी, राइट। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो लॉन्ग टर्म का है, तो उसके लिए फाइनेंस जो हम इकट्ठा करते हैं उसका सोर्स भी लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है, इन्वेस्टमेंट इन दिस एसेट्स would also include expenditure on acquisition, expansion, modernization and their replacement. These decisions include purchase of land, building, plant and machinery, launching new product line or investing in advanced techniques of production. Major expenditures such as those on advertising, campaign or research and development program having the long term implication for the firms are also example of the capital budgeting. ठीक है, तो जैसे कोई एसेट्स परचेस करना है, उसमें मॉडिफिकेशन करना है, एक्सपांशन करना है, कोई नया ब्रांच सेटअप करना है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी कहाँ पर आती है, फिक्स कैपिटल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आपका द मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल और इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीज़न. Now, why we need this thing? Let's see. First of all, long-term growth. The fund which you are going to invest in the long-term asset will give the benefit over a long period of time. That's why it is said that it is a long-term growth. This decision have bearing on the long-term growth. The fund invested in the long-term asset are likely to yield the return in the future. जैसे कि मैंने पहले ही बोला, जो पैसा आप फिक्स एसेट में डालेंगे उसके थ्रू जो प्रॉफिट जनरेट होगा ना, वो 1 महीने 2 महीने में नहीं दिखाई देगा आपको, बल्कि ओवर ईयर एंड ईयर दिखाई देगा. ठीक है. नेक्स्ट है आपका लार्ज अमाउंट ऑफ द फंड इन्वॉल्व. ऑब्वियसली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो इसमें जो फंड इन्वॉल्व होगा वो लार्ज अमाउंट ही होगा. ठीक है, तो उसका अमाउंट भी क्या होगा, लार्ज होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और दूसरी चीज़ फिक्स एसेट ले रहे हैं, तो फिक्स एसेट आपका नॉर्मली कॉस्टलियर ही होता है. ठीक है. दिस डिसीजन रिजल्ट इन एन अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द capital funds being blocked in the long term project. Therefore this investment are planned after detailed analysis. इसीलिए जब भी आप फिक्स एसेट्स में पैसा डालने के लिए जाते हैं तो बहुत ध्यान से डालिएगा. ठीक है. नेक्स्ट, रिस्क इन्वॉल्व. फिक्स कैपिटल इस लाइफ में, यानी कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी गुड्स नहीं है, आइटम्स नहीं है, थिंग्स नहीं है जिनमें रिस्क ना हो. ठीक है. ह्यूमन बीइंग की लाइफ में भी रिस्क होता है, बिजनेस में भी रिस्क होता है. सो फिक्स कैपिटल इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट. इट अफेक्ट द रिटर्न्स ऑफ द फर्म एज अ होल इन द लॉन्ग टर्म. Therefore, investment decision involving fixed assets capital influence the overall business risk complexion of the firm. सिंपल है, अगर आपने कोई राइट डिसीजन लिया है रिगार्डिंग द कैपिटल बजटिंग और फिक्स एसेट्स तो वो प्रॉफिटेबल है, लेकिन अगर आपने एक भी रॉन्ग डिसीजन ले लिया
तो वो आपका बिजनेस रिस्क क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट है इरिवर्सिबल डिसीजन। एक बार आपने फिक्स कैपिटल के लिए जो भी डिसीजन ले लिया ना, उसको आप गेट बैक नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो हो गया वो हो गया, ठीक है। अब उस डिसीजन की वजह से चाहे प्रॉफिट जनरेट हो चाहे लॉस हो, यू कैंट रिटर्न योर डिसीजन, क्योंकि लॉस हो रहा है तो चलो चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दिस डिसीजन वंस टेकन आर नॉट रिवर्सिबल विदाउट incurring heavy loss. Abandoning a project after the heavy investment is made is quite costly in terms of the waste of the fund. Therefore, this decision should be taken only after carefully evaluating the each details, or else the adverse financial consequences may be very heavy. ठीक है, यानी कि जब भी आप फाइनेंशियल फिक्स कैपिटल फिक्स एसेट्स डिसीजन लेने जाए तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहिए। सो स्टूडेंट, हम लोग एक काम करते हैं, आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। इफ़ यू हैविंग एनी काइंड ऑफ द डाउट student, so you can ask me in the evening schedule. Till that, stay home, stay safe. Jai Hind, take care.